So sandboxing क्या होता है? Sandboxing is something which you can or your network will be safe from zero day attack. How? सपोज इनके पास पूरा एक डेटाबेस होता है, राइट? जिस कलर के पास इसका खुद का एक डेटाबेस है, उसमें जितने भी इस इंटरनेट पे यूआरएल है, जितने भी एप्लीकेशन है, ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन हेयर, राइट? इनका खुद का डेटाबेस है और खुद का इनका एप्लीकेशन क्लाउड है जिसमें सब कुछ है, राइट? until unless that application should register today, right? अगर कोई एप्लीकेशन आज रजिस्टर हुआ देन मे बी दे हैवंट दैट डिटेल, राइट? या कोई डोमेन आज रजिस्टर हुआ है, दे हैवंट दैट डिटेल, राइट? until unless it sync with the network, right? और sync with the threat intelligence and all, right? तो इस केस में क्या है? एनी फाइल which is which detail is not available on the Zscaler database, Zscaler treated those URL, those IPs, those files as a zero-day attack. There is a concept known unknown. Known means that file is available and Zscaler. Suppose I will give you the example. Suppose आपका techclick.in है. Zscaler categorize this website under the blog and networking like educational something like that. अब मैं अगर you will see when I launched this website, that time when I hit that, it's in the Zscaler database is showing unknown. तो अभी Zscaler ने because of Zscaler bot call on that website and they understand the behavior of the website, according they will put it into that dedicated हाँ categories. तो अभी कोई वेबसाइट है उसको पता ही नहीं, वो मे बी यूजर विजिटेड ऑन दैट वेबसाइट एंड दैट इज नो doing the credential phishing or is phishing your data, right? Stealing your data information, id password, या फिर there is cross site scripting, कोई अटैक है वो परफॉर्म हो रहा. so so because of that, Zscaler will not understand or not Zscaler data base haven't that kind of detail against that particular application or website. So that kind of thing Zscaler treated as a zero day attack. And Zscaler, there's a concept in the Zscaler is sandboxing. What Zscaler does, Zscaler क्या करता है? ठीक है, आपने दे दिया हमें, हम इस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. ओके, सो व्हाट नेक्स्ट आई विल डू? Zscaler क्या करता है? उस फाइल को, सपोज दैट इज डॉट exe फाइल और वो कोई यूआरएल है, जिस कलर का एक सैंडबॉक्स है. सैंडबॉक्स मतलब उसकी डेडिकेटेड मशीन्स है, वो फाइल अपलोड होगी जिस कलर पे, और जिस कलर उसको कहाँ सेंड कर देगा? उसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कोई विंडो है, लिनक्स है, मैक है, राइट? अगर जो भी फाइल है उस फाइल के अगेंस्ट उसके ब्लेड में भेज देगा. जैसे अगर डॉट exe फॉर्मेट का फाइल है, इट विल गो टू द विंडो, राइट? अगर डॉट एंड्रॉयड का है एपीके, इट गो विद द एंड्रॉयड, राइट? डॉट इसका एमएस क्या होता है, एमई एस कुछ मैक का होता है ना फॉर्मेट. इफ दिस इज लाइक मैक, देन इट सेंड टू द मैक सैंडबॉक्स, राइट? अब वहां क्या होगा? उसका बिहेवियर एनालिसिस होगा. जैसे मान लो कोई exe फाइल है तो वो इंस्टॉल होगी आपको, इट्स सॉफ्टवेयर, राइट? तो वो इंस्टॉल होगा, उसमें वो चेक करेगा ऑन पेयर इट चेंजिंग ऑन विच पोजीशन, लाइक रजिस्ट्री में क्या वैल्यू चेंज किया है, उसके पॉलिसी में क्या चेक किया, उसके जो प्रोसेसर यूज हो रहा, जो बैकएंड में टास्क मैनेजर है उसमें क्या प्रोसेस रन हो रहा अगेंस्ट दैट सॉफ्टवेयर, राइट? So overall observation, and also observe how many connection that particular software is in building from outside, right? Based on the behavior, based on the analysis, it will generate the signature or against that software or that file, right? तो जब signature आ जाता है, whether it's malicious or whether it's legitimate, right? So based on that, if it's legitimate, then it will allow. If it's malware or it's a virus, then of course it should block. And same thing, Zscaler push that detail to all over globe. They're all customers. Okay, so only single time if they get it something unique, they will push on the all customers. So next time, if same any Zscaler customer trying to access that website, that URL, that file, it should be take action based on the observation. Make sense, guys? Okay. वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट होता है जी Palo Alto में, लाइक सेम. तो
सिद्धांत हाँ समझे? हाँ जी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब बेसिक है एंड एवरी वेंडर इज यूजिंग, सब नाम चेंज कर देते हैं। सैंडबॉक्सिंग आपका चेक पॉइंट में होता है, फोर्टीगेट में होता है, पालोल्टो में होता है, और जो भी और एनी डिवाइस दे आर ऑल या यूजिंग द फायर सैंडबॉक्सिंग। on the अच्छा firepower, it's having name like AMP, Advanced Malware Protection. यस 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 यस, 100%, 100%, यस। ठीक है, अब ये प्रोटेक्शन क्या करता है बेसिकली? इनलाइन जीरो डे मालवेयर प्रोटेक्शन, राइट? व्हाट आई सेड कि कोई भी चीज अगर जीस कलर के पास सिग्नेचर नहीं अवेलेबल है उस चीज के, देन जीस कलर ट्रीटेड एज अननोन फाइल। अननोन फाइल का एक्शन यही होता है, जिस कलर उसको अपने सैंडबॉक्स में रन करेगा। जब मैं सैंडबॉक्स बोलता हूँ गाइस, आपका ऐसे समझो हमारे पास 5 लैपटॉप है, हमको मैनुअली समझो, ठीक है? सिद्धांत को मैंने बिठा दिया, सिद्धांत यू विल वेरीफाई एवरी फाइल जो भी यूजर एक्सेस कर रहे हैं। तो सिद्धांत के पास एक एक्सेल सीट है, उसने देखा अच्छा ये यूजर है, ये अवेलेबल है, ये फाइल, अच्छा ये ठीक है, ये लेजिटिमेट है, इसको अलाउ करो। अगर सिद्धांत को कोई नई फाइल यूजर एक्सेस करेगा तो सिद्धांत क्या करेगा? अपनी सीट में वेरीफाई करेगा कि हाँ यार इसका तो हमारे पास है नहीं डिटेल, तो क्या करो, अच्छा डॉट .exe है, डॉट .apk है, क्या कौन सा फॉर्मेट है, अच्छा ये डॉट .exe है, चलो इसको विंडो पे रन करो, इसका बिहेवियर देखते हैं, कहाँ कहाँ बात करता है, क्या क्या चेंजेस करता है सिस्टम के अंदर, और उसके बाद क्या ये इसका बिहेवियर क्या है, बेस्ड ऑन दैट इज ट्राई टू फैच डेटा और सिग्नेचर। उसके बाद सिद्धांत ने मेंशन कर लिया अपनी एक्सेल शीट में, दिस लुक मलेशियस और दिस लुक फिशी, है ना? उस बेस पे उसने ब्लॉक किया, अलाउ किया। सेम चीज डूइंग बाय जी स्केलर, ठीक है? जो भी चीज विच इज नॉट अवेलेबल इन जी स्केलर डेटाबेस दे ट्रीटेड एज अ फिशिंग और जे ट्रीटेड एज अ अननोन। और अननोन के लिए फिर क्या एक्शन होगा? दैट्स व्हाई इज अ जीरो डे प्रिवेंशन, राइट? Of every 305 cent of sandboxing is new, denoted and found to be malicious. 1 out of every 305 सेंड टू सैंडबॉक्स, 300 में एक फाइल एक हर एक सैंडबॉक्स को जाती है, मतलब दे ट्रीट एज ए न्यू फाइल, राइट? तो ये सिर्फ यही नहीं करता कि आपका चेक किया और बता दिया, ये सिग्नेचर बनाता है उसका फॉर नेक्स्ट टाइम। And if any Zscaler customer have that kind of file trying to access, they will take action based on the signature, है ना? They will scan the signature and they will send it to allow or block, right? Right. So you will see this point. Sandbox all unknown traffic and file suspicious location. Observe defend evasion technique. तो जितने भी आपके malware और जो भी new unknown फाइल हैं, सबको फाइल सैंडबॉक्स भेज देता है अपने थ्रेड इंटेलिजेंस में, वहां से टेस्ट होता है। अब सब्सक्रिप्शन लेवल होता है, राइट? इंक्लूड बिजनेस शूट, आपको लिमिटेड फाइल टाइप, ये जो बाय डिफॉल्ट आता है exe dll, ये विंडो के लिए होता है ना? और जो मैक्सिमम फाइल साइज मिलता है 2 MB। मान लो आपका फाइल कोई सॉफ्टवेयर है 60 MB का है, उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसका, सैंडबॉक्सिंग का, है ना? नो पॉलिसी कंटेंट, नो क्वारंटाइन, नो रिपोर्टिंग, ये बेसिकली इनका बाय डिफॉल्ट है जो फ्री आता है ना? मतलब यू हैवंट रिक्वायर अ लाइसेंस, बिजनेस शूट जो है ना इनका, मतलब बाय डिफॉल्ट इंक्लूड रहता। तो अब इनका एक ये एडवांस है, दैट इज द पेड वन, राइट? तो इसमें क्या होता है? यू कैन इंक्लूड दिस फाइल टाइप, राइट? आप देखो सब कुछ इन्वॉल्व है, राइट? एपीके एंड्रॉइड का है, राइट? स्क्रिप्ट डॉट जिप फाइल भी इन्वॉल्व है, राइट? मैक्सिमम 20 MB, एपीके 50 MB, राइट? गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल, आपको क्या लगाना है, ब्लॉक क्वारंटाइन कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। फुल आईओसी एंड पैसन जीरो रिपोर्टिंग एंड अलर्टिंग, आपको रिपोर्ट देंगे, उसमें डोमेन आपके हैशेस जितने होंगे और आपके जो यू विल गेट इट द यूआरएल डोमेन्स, सो सारी डिटेल आपको देंगे, यू कैन ब्लॉक इट ऑन योर नेटवर्क। तो ये बाय द वे पेड है, ठीक है? तो ये फीचर सारे सैंडबॉक्सिंग में अवेलेबल हैं, नॉट अ बेसिक मॉडल इन द एडवांस, ठीक है? अब इनका स्कोर सिस्टम होता है एक बेनिगन, मतलब अगर 40 से कम स्कोर है इट शुड बी शोइंग एज ए ग्रीन, एंड 70 है तो इट विल बी
malicious और blocked, right? ओके वो रेटिंग देते हैं बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द फाइल, है ना? कि जैसे कोई फाइल है, अब वो क्या रजिस्टर में चेंज कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपकी एडमिन रजिस्टर में चेंज कर रहा है, इट मींस इट लुक वियर्ड, राइट? कोई सॉफ्टवेयर को क्यों आपकी एडमिन प्रोफाइल में चेंज करना, राइट? अब कोई प्रोसेस अपना हाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ दे आर यूजिंग सम एडवांस लेवल ऑफ यू नो, अगर वो एक्सेस उसको लेना है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सॉफ्टवेयर, राइट? तो दे यू विल गेट इट द रिपोर्ट। अब देखो ये बहुत अच्छा है, अगर इसको आप सही से समझ चुकोगे तो समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इनकमिंग फाइल है ना? अगर एमडी फाइल अननोन है मींस वो अननोन फाइल है, उसका अगर ऐसे अननोन है बेसिकली, जो जो कोई भी थ्रेड इंटेलिजेंस होता है गाइस, वो फाइल को इस हिसाब से नहीं पढ़ता है कि वो पीडीएफ है तो क्या है, बिकॉज वो ऐसा थोड़ी इसके अंदर डेटा रीड करेगा क्या है, राइट? दे नो द हैश वैल्यू, वो हैश वैल्यू से मैच करेगा उसके डेटाबेस में, अगर है कोई, नहीं है, अगर नहीं है तो वो ऐसे अननोन फाइल ट्रीट करेगा। और अननोन का पहला का क्या काम है, इज दिस मलेशियस, मतलब आफ्टर रन द इन द सैंडबॉक्सिंग देन डिसाइड इज दिस मलेशियस, नो तो अलाउ है, अगर मलेशियस है तो ब्लॉक, यस और नो, अलाउ एंड लॉक। तो ये वाला एक्शन आप लोगे, यू कैन डिफाइन इन द पॉलिसी विद अननोन फाइल। ओके, इससे समझ में आ रहा ना, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, मतलब सिंपल एंड प्लेन, विद इन सेकेंड यू विल गेट इट। एक इनकमिंग फाइल है, यूजर ने क्या किया, डाउनलोड कर रहा है कोई पीडीएफ, ठीक है, ये यहाँ आई, ओके, जिस कलर ने हैश मैच किया उसका MD5 उसके पास नहीं है, ओके, स्ट्रीट अननोन फाइल, अननोन का क्या काम है, उसको सैंडबॉक्सिंग में किया, सैंडबॉक्स में रिजल्ट क्या है, मलिशियस है, यस, तो इधर भेज दिया, अगर नहीं है तो अलाउ है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज जरूरी नहीं ना जो चीज जिस कलम में नहीं अवेलेबल है वो सारा all are the malicious one, right? It's legitimate traffic as well, right? तो उस केस में ब्लॉक है, अगर आइडियली इट शुड बी ब्लॉक, बट आपने अगर अलाउ कर रखा है बिकॉज सम टाइम मे बी फॉल्स पॉजिटिव, राइट? या मे बी आपका इंटरनल, मान लो जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी फाइनेंस है, तो आप क्या करते हो, यू मे बी फॉर टेस्टिंग पर्पज वो सॉफ्टवेयर आपको, यू आर चेंजिंग थिंग्स इन द यू नो, मतलब आपको टेस्टिंग के लिए यूज करना, तो वो सारी हरकत करेगा जो जिस कलर को लगेगा ये फिशिंग है, राइट? इस मालवेयर, तो उसमें आप उसको अलाउ करो बिकॉज यू नो इट्स योर सॉफ्टवेयर, राइट? यू आर यूजिंग दीज चेंजेस बिकॉज ऑफ टेस्टिंग पर्पज, राइट? तो हाँ, अब अगर MD5 नोन है तो इनकमिंग, इफ MD5 अननोन है, अगर नो है तो क्वारंटाइन, यस, वेट फॉर पेज डिनोनेशन मालवेयर, अलाउ वाइड लिस्ट और ब्लॉक वाइड लिस्ट। ये क्या है, अगर कोई फाइल है विच यू वांट डेडिकेटेड ब्लॉक और अलाउ, मतलब अगर नोन भी है, राइट, स्टिल यू वांट टू टेक एक्शन, तो जैसे MD5 में कोई अवेलेबल है, राइट, और उसका मान लो स्कोर इन्होंने 70 दे दिया, कोई फाइल है, राइट, तो उसका क्या करना, इफ यू वांट टू क्वारंटाइन यू के यस, तो क्वारंटाइन मींस बेसिकली यू आइसोलेट दैट फाइल, राइट? अगर वो फाइल मलेशियस है तो आपको इट शुड बी गो बाय, मतलब अगर कोई, मींस व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कोई फाइल नोन है और वो मालवेयर है, राइट, वो पॉलोल्टो उसको क्या करेगा, सॉरी दैट जी स्केलर, उसको अगर मालवेयर है तो उसको ब्लॉक करेगा, राइट? अगर नहीं है तो अलाउ करेगा, राइट? ये पॉलिसी पे आपका डिसाइड होता है। If the MD5 has a file is not known, you have option whether or not quarantine file or block the download until file has a proven that a beacon. If enable quarantine option will be displayed, wait for page. Quarantine and display wait phase and you automatically found that okay. So एक ये है, ये तो एक सेपरेट है, you will understand कि हाँ ये क्या बोलते हैं कि मालवेयर है, और ये इस फाइंडिंग वंस इट डिसाइड कि हाँ ये करंट, ये सपोज इट्स एनी फाइल विच सीम्स लाइक कि उसके पास
MD5 है बट इवन इट्स नॉट डिसाइड वेदर इट्स लेजिटिमेट और इट्स मालवेयर। तो उस केस में क्या करता है, वेट करता है, उसके बाद दोबारा चेक करेगा उसका बिहेवियर फाइल का, उस बेस पे उसको डिसाइड करेगा वेदर आई कैन ब्लॉक इट और अलाउ इट। If the MD5 as for the file is not known, okay, you have an option whether you are not a quarantine to block download until file has a proven to begun। तो अच्छा, ये समझ गए गाइस, ये वाला लास्ट वाला, कि मैं एग्जांपल दूं इसका एक एग्जांपल दो ना। ओके देखो, कोई फाइल है, ठीक है, अब वो अननोन है, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यू विल सेंड टू सैंडबॉक्स सेम टाइम। अगर मान लो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप अनटिल अनलेस यू कैन ब्लॉक वो फाइल तब तक रखो जब तक उसका सिग्नेचर ना बन जाए। सेकंड ऑप्शन, यू विल अलाउ इट एट द मोमेंट एज ए अननोन, और जब आगे उसका सिग्नेचर आएगा देन यू विल पुश इट द पॉलिसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो वही चीज कह रहा है कि अगर उसका सिग्नेचर के लिए भेज देगा सैंडबॉक्सिंग में, और जो यूजर उस फाइल का वो फाइल एटलीस्ट यूजर के पास है, राइट, वो फाइल का तब क्या करना, सैंडबॉक्सिंग चल रहा, उसको छोड़ो आप, फाइल है उसको क्या करना है, इज इज क्वारंटाइन टिल रिपोर्ट केम, और उसको अलाउ कर देना एट द मोमेंट, है ना, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम यूजर कैन एक्सेस दैट फाइल, राइट। ओके, मेक सेंस चंद्रशेखर? हाँ हाँ ठीक है राम भैया, कंटिन्यू। बेस्ट प्रैक्टिस, risk tolerance low, quarantine recommendation more URL category, more file type and the investment bank and law firm। तो ये बेसिकली इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो बैंक्स वगैरह हैं, लॉ फर्म, बेसिकली दैट हायर सिक्योरिटी, दे आर यूजिंग हायर सिक्योरिटी, राइट। तो उनके लिए बोला कि आप यू कैन फुली यूज दैट सैंडबॉक्सिंग, आपको मतलब you will basically you will use the advanced features of that sandboxing, और सारी कैटेगरी पे यूज करना, बिकॉज आपको ऑप्शन मिलता है कि जैसे आपको लगता है कि अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन होगी दैट शुड नॉट अ malicious, राइट। तो जिस कलर इज रियली डिटरमाइन टू टॉलरेंस रिस्क, तो ये जो फाइनेंस रिलेटेड है उनके लिए इट्स रिकमेंडेड दैट you used on all category। Other organizations have a high tolerance such as IT, engineering group, academic research organization, recruiter, sales. This can probably get away with the analysis fewer URL category and file। तो जो ये लोग हैं ये दे विल डिसाइड कि हमें भाई हाँ 5 कैटेगरी हैं, हमें उन पे ही हमें सिर्फ हमको ये करना है, ये क्या नाम आपका सैंडबॉक्सिंग। जैसे हम एक हो गया मान लो सोशल हो गया, है ना, न्यूज हो गया, और आपका एक बिजनेस हो गया, और एक आपका स्टॉक एंड एक्सचेंज होगा। तो जैसे यू कैन लिमिटेड यूज दैट ऑन द लिमिटेड कैटेगरी, ट्रेडिंग because पर ये all, साइड है। हाँ, you have a, you know what data user mostly accessing in your organization, right। आप जैसे सी, आप क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर कैटेगरी एंड द फ्यूअर एनालाइजिंग द कैटेगरी एंड फाइल टाइप। जैसे आपने पीडीएफ लगा दिया और .doc लगा दिया, ठीक है। तो ये दो अगर फाइल टाइप हैं और ये अननोन है तो इनको आप सैंडबॉक्स में भेज दो, है ना, क्योंकि इसमें तो पूरा ऑल होता है ना एडवांस सेटिंग में, राइट। चलो ये भी हो गया। अब लैब का बात करते हैं, सैंडबॉक्सिंग में आते हैं। गाइस पॉलिसी बहुत सिंपल है, प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक रूल ऑलरेडी है, ठीक है, डिफॉल्ट रूल, राइट। अब उसको इन्होंने ओपन किया, राइट, इट्स क्लिक ऑन ओपन। तो अब क्या है यहाँ पे, आपको फाइल टाइप यहाँ से वही चीज आपको क्या किस पे लगाना है, राइट, .exe, .exe4, .pdf, मतलब सारा आप सेलेक्ट कर लो, राइट। अब जो मैं जो चीज बोल रहा था कि बैंक में ऑल होना चाहिए, इस कैटेगरी में यूआरएल कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी पे, सस्पिशियस डेस्टिनेशन, या फिर आपको मल्टीपल कैटेगरी मिलती हैं, आप किसी भी कैटेगरी ऑल लगाओ ऑल, और या फिर आप डेडिकेटेड लगा सकते हो, राइट। ओके। अब सैंडबॉक्स में क्या क्या है, सैंडबॉक्स इनके 4-5 टाइप के होते हैं, सैंडबॉक्स एडवेयर, sandbox malware, bootnet, sandbox p2p net। So basically you can select all because you don't know which kind of attack you will get it or which kind of file you will get it, right।
तो इनका सबका एक रीजन होता है, जैसे एडवेयर क्या है, जितने एडवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जो पॉपअप देते हैं ना यूजर के उसमें, वो सैंडबॉक्स एडवेयर में जाते हैं। जो सैंडबॉक्स मालवेयर है, जो कि एक्चुअल आपका जो वायरस होते हैं ना, वायरस, बॉम्ब, बोटनेट, ये सब आते हैं। और जो इनका सैंडबॉक्स P2P है, P2P मीन्स जैसे आपका बिट टोरेंट हो गया, या इस तरीके से है। पीयर टू पीयर वाले जितने अटैक हैं वो इसके अंदर जाते हैं। तो विल सेलेक्ट ऑल 3। एक्शन क्या करना, ये चीज मैं बता रहा था गाइस। एक्शन क्या करना, फॉर सीक्वेंस डाउनलोड यू वांट टू ब्लॉक और अलाउ। और फर्स्ट टाइम एक्शन क्या करना, ये चीज समझ गए ना मैं क्या बोल रहा था वहां पे, कि you want to quarantine till wait once signature came then you can take action, या आप चाहते हो कि ठीक है एक फाइल आई अननोन है, एटलीस्ट एट द मोमेंट यूजर को बोल दो वो डाउनलोड कर ले, मतलब यू कैन अलाउ इट। फर्स्ट एक्शन क्या होगा अगर फर्स्ट टाइम आई है, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट। सिद्धांत, यू गॉट इट राइट, व्हाट आई वाज सेइंग दैट, राइट? जो फर्स्ट एक्शन में आपको ब्लॉक वेट करना है टिल जब तक फाइल का सिग्नेचर नहीं बन जाता सैंडबॉक्स में, या फिर आप उसको ब्लॉक करो पहले स्टेप में। यू कैन बाय द वे यू कैन बेसिकली ब्लॉक कर दो तो ज्यादा अच्छा है। सम टाइम कभी कभी लेस्टिमेट ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, तो बेस्ड ऑन योर कंपनी रिक्वायरमेंट यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन।